امیر صاحب، بھائی وزیر صاحب، محمد امیر صاحب، زین منیر، شبیر مغل صاحب، جتنے بھی احباب کا میں نام لیتا جا رہا ہوں اس سے سیدھا کریں، محمد بشارت صاحب اور محمد یعقوب گجر سابقہ بازار والے وہ تشریف لائیں، شبیر گجر، سمیر طارق، زہیر گجر، محمد تفضل صاحب، حافظ رمضان صاحب، حافظ ابصار صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور عمر اقبال صاحب، احتشام لطیف صاحب، محمد حرام صاحب، چودھری یاسر حمید صاحب، محمد وقار صاحب، یہ جتنے بھی احباب ہیں محمد عثمان صاحب، ایک بار پھر سماعت فرما لیں، حاجی رفیق صاحب، یاسین صاحب، چودھری مسعود صاحب، شراز صاحب، یہاں رکے لی، امین صاحب، مبین صاحب، محمد انیس صاحب، زین منیر، شبیر مغل صاحب، محمد بشارت صاحب، محمد یعقوب گجر، مرزا ابراز صاحب، سہیل گجر، سمیر طارق، زہیر گجر، محمد تفضل صاحب، حافظ فیضان صاحب، عمر اقبال صاحب، احتشام نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے علماء، پنڈال میں موجود عوام علاقہ، تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر کے کارکنان، عہدیداران و ذمہ داران، السلام علیکم۔ وہ واقع کش کہ موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن سے نکال دو۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آشکاباد اسلام گڑھ کے عظیم لوگوں کو، جنہوں نے آج تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر کا حصہ بن کر یہ ثابت کر دیا کہ اغیار جتنی مرضی چالیں چالیں، جو مرضی ہتھ کنڈا استعمال کر لیں، آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس الیکشن میں انشاءاللہ مخالفین کے تمام تر حربے ناکام ہوں گے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر آئے گا۔ آپ نے گورنر میٹنگ ارینج کر کے اور اس کو جلسے کی شکل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ تمام عوام یکجا ہو کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت پر لانا چاہتی ہے، اور تمام مخالفین نے جو حربے استعمال کیے، کون واقف نہیں کس طرح سے میٹنگ کرنے سے روکا جا رہا تھا، لیکن آپ نے مضبوط کردار اور طاقتور آواز بن کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اغیار کے سامنے آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے رہیں گے اور دین محمدی کی حفاظت کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ مقصد کسی ذات کا مقصد نہیں، یہ مقصد کسی انفرادی شخصیت کے لیے نہیں، بلکہ آقا دو جہاں وجہ تخلیق کائنات حضور اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب یہ مقصد ہے، اور اس مقصد پر چلنے والا ہر سپاہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند مخالفین پر اسی طرح بھاری ہے جیسے حضور کے دور میں تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
عوام کا یہ جمع وفیر دیکھ کر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے دلوں میں سرایت کر چکا ہے، اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے عوام کے دلوں سے نکال نہیں سکتی۔ اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ 25 جولائی کو بطور نتیجہ الیکشن آپ دیکھیں گے کہ تحریک لبیک آزاد کشمیر انشاءاللہ اپنا نمائندہ اسمبلی میں بھیج کر رہے ہیں۔ اشکاباد اسلام گڑھ کی عوام کی تاریخ سے کون واقف نہیں؟ آپ نے جو کردار ادا کیا اس ملک اور قوم کی ترقی میں وہ لازوال ہے۔ ہجرت بے شک احسن ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ہجرت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے ہجرت کر کر اس ملک کے قوم اور عوام کی فلاح کے لیے جو کردار ادا کیا وہ لازوال ہے، اور اس پر آپ ہمیشہ مبارکباد کے مستحق رہیں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ 25 جولائی کو کریم پر مہر لگا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ دین محمدی جو حق دین ہے، نظام مصطفیٰ ہی حق ہے، کیونکہ دو نظام حق نہیں ہو سکتے، ایک ہی نظام حق ہے، اور وہ نظام خدا عطا کردہ جو خدا نے عطا کیا ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، وہی حق ہے۔ اس کو تخت پر لا کر یہ اغیار کو ثابت کر دیں کہ تمام تر چالیں ناکام ہو چکی ہیں۔ کے ساتھ آپ لوگ بے شک بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ اس قافلے کا حصہ بنے ہیں جسے علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقصد کے لیے تیار کیا تھا کہ وہ دین کو تخت پر لائیں۔ وہ کیسا دین کہ جس کا معاشرتی نظام ہے، معاشی نظام ہے، اور وہ نظام عام عوام کی فلاح و بہبود کا نظام ہے۔ باقی کسی جماعت میں یہ نظام موجود نہیں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ عشق و فریاد لازم تھی صبح بھی ہو چکی، عشق و فریاد لازم تھی صبح بھی ہو چکی، اب ذرا تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ میں کوئی بات نہیں ہے، مجھے میرا اپنا ایک اعتقاد ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ جو لوگ حق کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ مشکلات ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ مجھے یاد ہے امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی لاہور میں مسجد الرحمۃ للعالمین میں، نماز جمعہ ہم نے وہاں ادا کی۔ ہمارے ساتھ حاجی شفیق الرحمان صاحب، حاجی بشیر صاحب، بدر صاحب یہاں موجود، بہت سارے احباب تھے تحریک کے، قاری حلیم صاحب اور بہت سارے احباب، ظہیر عباس صاحب، جتنے بھی تحریک کے زماناران تھے۔ تو جب ملاقات ہوئی تو چونکہ ان کو پاس معلومات تھی تو کہنے لگے آپ کے حوالے سے ہمیں بہت ساری معلومات بھی ہیں، آپ جائیں اور آزاد کشمیر کے آنے والے انتخابات میں تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں۔ میں نے کہا حکم کی تعمیر کروں گا، یہ بندہ ناچیز جس کو یہ سعادت بخشی گئی۔ تو چلتے وقت میں نے عرض کیا کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، میں جو بات کہنا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ فضائے بدر کو پیدا کریں، فرشتے قطار اندر قطار دیکھیں آپ کی نصرت کو کس طرح حاجی رفیق صاحب، میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، صاحبزادہ رمضان قاسم صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹھیکیدار مشتاق صاحب موجود ہیں ڈاکٹر ٹاؤن سے، کہ ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ کر کے کہنا چاہتا ہوں، یہ لیڈر جو مختلف جماعتوں کی سیاسی جماعتوں کے رہنما تو نہیں کہنا چاہیے، یہ راستن جو دیکھتے دیکھتے رہنما بن گئے، یہ جب بھی الیکشن آتا ہے تو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں نہیں،
नौजवानों के सोचों पर डाका डालने की कोशिश करते हैं और उनके जमीन खरीदने के लिए नकद लगाते हैं। और आज इस इलेक्शन के अंदर, मौजूदा इलेक्शन के अंदर, क्योंकि तहरीक लब्बैक जो है मैदान अमल में है, इन्हें मालूम है अच्छी तरह, अगर तहरीक लब्बैक की ये आवाज असेंबली में पहुंच गई, ये वही ढेर हो जाएंगे, इनको कुछ पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए ये साजिशें करते हैं और शबरोज साजिश में लगे हुए हैं कि तहरीक लब्बैक का किस तरह रास्ता रोका जाए। लेकिन इन्हें मालूम नहीं, सहराए अरब से जो आवाज चली थी, सहराए अरब पे जो तहरीक चली थी 1400 साल पहले, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके भाई और रहनुमा थे, वो तहरीक भले कयामत तक कभी रुक सकती है, उसको कौन रोक सकता है, उसके सामने कौन रुकावट बन सकता है। ये आज के नौजवान जिन्होंने ये तहैया कर लिया है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की जब बात आएगी, खत्म नबूवत की जब बात आएगी, कोई डाकू और लटेरा असेंबली ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हल्ला सराई करने के लिए आंगन के अंदर जो है तब्दीली करने की कोशिश करेगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने लियाकत बाग में भी मौजूद होंगे, लाहौर की सड़कों पर भी मौजूद होंगे, बल्कि कश्मीर के चप्पे चप्पे में मौजूद होंगे और हुजूर की हुर्मत पर किसी तरह की हाथ से क्या ले दें। शायद ये जानते नहीं, शायद ये जानते नहीं, हाजी रफीक साहब आप तो कितने खुशबख्त हैं, कितने खुशकिस्मत हैं कि आपने तमाम तर मफादात को ठुकरा के, तमाम तर लालच जो दिए जाते हैं आज उनको ठुकरा के अपने वो फैसला किया जो एक सही उम्मती रसूल का होना चाहिए। हम कितने गुनाहगार हो सकते हैं, कितने सियाकार हो सकते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर और ये नामूस पर जो है राई के बराबर में जो है वो कोई हमला हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आज साजिशें तो वहां की गई, ठेकेदार मुश्ताक साहब, मैं ये कहना चाहता था फरिश्ते किस तरह, चूंकि बात दूसरी तरफ चली गई, रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि फरिश्ते देखेंगे आप किस तरह कतार अंदर कतार, मुझे नहीं मालूम, मेरा कोई तारुफ नहीं था ठेकेदार मुश्ताक साहब से। इनके भाई और इन्होंने मुझे 2-3 हफ्ते पहले फोन किया, मेरी कोई इनसे जान पहचान नहीं थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गवाह करके कहना चाहता हूँ, एक मजबूत कबीले के शख्स में चक्की अयूब साहब बैठे हैं, इनके कबीले इनके तारीफ से ताल्लुक रखते हैं, और ये वो कबीला है कि सियासत के अंदर, इस बेल्ट के अंदर, इस्लामगढ़ से लेकर खालकाबाद तक के इस पूरे बेल्ट के अंदर मुझे मालूम है इस कबीले की अपने एक असल और ताकत मौजूद थी। लेकिन इन्होंने मेरे सामने मुझे फोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते थे, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ, और कुछ ही दिनों बाद मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम तहरीक लब्बैक में शामिल हो चुके हैं, हम तहरीक लब्बैक में रहकर अपनी बाकी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस परचम जो हमेशा के लिए सरबुलंद रहेगा, ताकि हमें क़यामत के लिए सरबुलंद रहेगा, उस परचम के साए का हम देना चाहते हैं। फिर उन्होंने वहां मीटिंग का इनेकाद किया, दफ्तर का इफ्तिताह करवाया। उस रोज भी साजिशें, उस रोज कहना चाहता था, वक्त कलील था, मैंने कहा ये साजिशें जो आपका जो जलसागाह थी, जो इज्तिमा था मीटिंग के लिए जहां इनेकाद होना था, उसको सुबह सुबह बंद कर दिया गया ताला लगा के, इसलिए कि किसी और के आका ने वहां से गुजरना था, किसी और ने वहां से सुबह गुजरना था, और वो पिंडाल सजा था इस्लामगढ़ फ्लाई नोट पे, तो ये दिखाना चाहते थे हमारा आका नाराज न हो जाए कि तहरीक लब्बैक जहां भी मौजूद है, उसको दिखाना चाहते थे। दरअसल ठेकेदार मुश्ताक साहब असल बात ये थी, और कोई बात नहीं थी, उस दिन वज़ीर अमूर कश्मीर में जहां आना था, और वो ये चाहते थे कि इस पूरे रास्ते के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह की ना कोई सदा जो है वो बुलंद हो, न कोई परचम, लेकिन दाद देना चाहता हूँ आपको, उनका वो जलसा और हमारी वो कार्य मीटिंग जो आपने मना की, उससे कहीं गुना जो है उसके अंदर रोशनी भी थी, नूर भी था, फैज भी था, और सदाएं बुलंद हो रही थी।
साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था, आप कोशिश करें और फरिश्ते आप देखें किस तरह कतार अंदर कतार आपकी मदद के लिए आते हैं। ठेकेदार मुश्ताक सब फरिश्ते की सूरत में आ गए और उन्होंने क्या खूब बात की अपनी तकरीर के अंदर। वहां इन्होंने कहा कि खात में मुझे ये दिखाया गया, ये परचम, ये माहौल दिखाया गया। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह में उठा तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं तहरीक लब्बैक में ही शामिल होगा। मेरी सारी जिंदगी इसी परचम के नीचे गुजरेगी। आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ ठेकेदार मुश्ताक साहब और हाजी रफीक साहब, आपको, आपके सामदादगान को और तमाम महबाब को, इस काफिला इश्क मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब धीरे धीरे तो चल रहा है लेकिन अपनी मंजिल पे जाके ही दम लेगा, इससे पहले नहीं इंशाअल्लाह। और कोई रुकावट लोग गाड़ियों में, मुझे ये बताया गया बिलखुसूस महाजन कॉलोनियों के अंदर क्या क्या, मैं क्या बताऊं, खुदा के खौफ से दिल कांप जाता है जब मैं उनकी बातें सुनता हूं। किस तरह के लोग हैं, किस तरह के रहनुमा हम चुनते आए, हम इनको वोट देते आए तवील मुद्दों तक। हमें नहीं मालूम हो सका कि इनके अंदर का इंसान कैसा है जो आपके मतलब ये राय रखते हूँ, अवाम उन्नास के मतलब ये राय रखते हूँ, जो अपने वोट से इनको पार्लियामेंट में भेजते हूँ उनके मतलब ये राय रखते हूँ। इनका क्या है, महाजन कॉलोनियों का क्या है, खैराबाद की महाजनों का क्या है, इस्लाम का के अंदर महाजनों का क्या है, महमूदाबाद चकवारी के अंदर महाजन कॉलोनियों का क्या है। हम 2 रोज पहले हमने एक्सरसाइज कर रखी है, एक अरसा से 2 रोज पहले जाएंगे और बोरियों के मुंह खोल देंगे तो देखेंगे कि हमें वोट किस तरह नहीं देते। हाल का अहलिया ने आज के बाद आपने साबित कर दिया, उनके तमाम लालच जो है वो आपको राय हदायत से, राय हक से नहीं हटा सके। और यही पैगाम है अल्लाह के लब्बैक का। तुम्हें मैं ये बगालता है, तुम्हारा मगालता मैं दूर करना चाहता हूँ। अब जाओ करिया चले जाओ, गली गली आवाजें लगा रहे हो कि किसी ने सड़क पक्की करवानी है, किसी ने गली पक्की करवानी है, किसी ने खंभा लेना है, किसी ने ट्रांसफार्मर लेना है। जैसे बचपन में हम सुनते थे, आज भी शायद हमारे गाँव और महलों में वो बर्तन बेचने वाले, कली करने वाले गुजरते हैं तो आवाजें लगाते हैं, किसी ने बर्तन कली कराने, भांडे कली कराने तुम्हारे पास आ जाए। ये भांडे कली कराने वाले घर घर फिर रहे हैं, लेकिन दाद देता हूँ आपको, आपकी गैरत ईमानी को, आपकी मोहब्बत मुस्तफा को, आपकी वफादारी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आपने तमाम लालच को जो है जूते की नाव पे ठुकरा के साबित कर दिया है आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। अब तुम्हारी किसी चाल में कोई शक नहीं आएगा। मैंने सबको बता भी दिया है, पूरी आजाद कश्मीर में मेरा पैगाम जो है आज ट्रैवल कर रहा है। मैंने 1.5 साल पहले ये कहा था, ये सड़कें, ये वाटर सप्लाई, ये इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये और तमाम बुनियादी जरूरियात और सहूलियात, ये मेरा आईनी और कानूनी हक है। मैं रियासत का रहने वाला हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ, कौमी बजट मेरा बजट है, आपके पैसों का बजट है, ये इनका एहसान ही है कि इस पर सियासत करें कि हमने आपको सड़कें दी है, हमने आपको वाटर सप्लाई दी है, हमने आपको बिजली दी है। नहीं, सियासत किस चीज पे, नजरिए की बुनियाद पर, निजाम की बुनियाद पर सियासत होगी आइंदा के लिए। अल्लाह के फजल करम से ये सारे के सारे ढेर हो जाएंगे जो गली गली फिर रहे हैं और आवाजें लगा रहे हैं। और नजरिया कौन सा, जिस नजरिए पे ये ममलकत कायम हुई, पाकिस्तान की रियासत कायम हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के उस कलमे की बुनियाद पर, आज 72 सालों के अंदर पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा नाफिज नहीं हुआ। अमीर मुजाहिदीन के एक सदा बुलंद की जो आज पूरी दुनिया में चली गई, लब्बैक या रसूलुल्लाह की सूरत में कि दीन मुस्तफा को तक फरमाया जाए, इसके बगैर कोई इशारा नहीं बनी नए इंसान के लिए। आज नौजवानों, आपसे ये तहैया करना है आज से कि आपने अपने घरों के अंदर नहीं, पड़ोस में नहीं, अपने महलों के अंदर जाके अपने दोस्त बाप को कायल करना है इस बात पे कि तमाम तर लालच जो है, तमाम तर मफादात की सियासत जो है, उसको ठुकरा के
दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना वोट डाला है। वो नबी जिनकी हम उम्मत हैं, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका दीन यहाँ तक लाना मकसूद है और तहरीक लब्बैक के मंशूर में शामिल है। वो नबी कौन है? 1,24,000 या कमोबेश अंबिया रसूल ने आपको ही अख्तियार दिया गया शफाअत का, अपनी उम्मत को बख्शवाने का। मैं और आप अपने नाम अमाल पे अगर और कोई चीज समझ में रखते हूँ, रोज़े महशर एक पर्ची जो हमने दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर दी होगी, हम बारगाह इलाही नाज करेंगे, या अल्लाह हमारा कोई और अमल है या नहीं, नमाजें हमने उस तरह पढ़ी है नहीं, रोजे उस तरह रखे या नहीं, और कोई इबादत है, लेकिन एक अमल हमने जरूर किया है। हमारे कानों में ये आवाज पहुंची कि आज दीन मुस्तफा हमें पुकार कर कह रहा है कि लोगों उठो, बेदार हो जाओ, अपने अंदर शऊर पैदा कर लो और जाग जाओ और दीन मुस्तफा को तख्त पर लाने के लिए कमर बस्ता हो जाओ और अपनी वोट हुजूर के नाम पे इस्तेमाल करो। ये खामोशी कहां तक लज्जत फरियाद पैदा कर, ये खामोशी कहां तक लज्जत फरियाद पैदा कर। तू जमीन पे हो और तेरी सदा हो आसमानों में। आज वक्त आम पहुंचा है कि हम इन मफादात के, इन पुजारियों को, इन लटेरों को ये पैगाम दे दें कि नहीं, तुम्हारी किसी तरह की कोई साजिश और मफादात जो है वो हमारे जमीन और ईमान को नहीं खरीद सकते और मोहब्बत मुस्तफा को हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। आप करिया नौजवानों जाके तो सबको पैगाम पहुंचाएं कि दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज के लिए अपनी पूरी ताकतों से, अपनी पूरी मेहनत से, अपनी पूरी कुव्वत से ये जो पुत खड़े हैं, इनके अंदर शगाफ को पड़ चुके हैं, अब इनको मुनहदम करने का टाइम आ चुका है। इनको लैस नाबूद करके जमीन के नीचे गाड़ दें। इंशाअल्लाह ताला दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहारें होगी तो रियासत मदार होगी हमारी तमाम जरूरियात, हमारे बेसिक मसाइल के हल के लिए। फिर किसी को मुतालबा करने की जरूरत नहीं होगी कि जहाँ बिजली चाहिए, जहाँ सड़क चाहिए, जहाँ बच्चों की तालीम चाहिए या सेहत चाहिए, फिर खलीफा कौन होगा, हुक्मरान कौन होगा, फिर असेंबली में बोलने वाला कौन होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की बात करेगा। हुजूर के निज़ाम में ये तमाम सारी आसाइशें जो हैं बड़ी नौ इंसान के लिए मौजूद हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आप तमाम अहबाब से और आज के मुंतज़िमीन से हाजी रफीक साहब आप और आपकी पूरी फैमिली को दिल की अता गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये यकीन रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को करैन पे मोड़ लगा के हम ये साबित करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। दुनिया के किसी और लीडर के हम गुलाम नहीं हैं, हुजूर के गुलाम हैं और सच्चे गुलाम हैं। और सीनतान के बाज़ औक़ात मुझे ये भी कहीं हम गए, नौजवान चूंकि अपने बड़े जो हैं आबा व अजदाद वालिदैन उनके ज़ेर असर होते हैं और जो ज़रूरी भी है, लेकिन वालिदैन का खौफ डर लेकिन आज नौजवानों ने वो भी ख़त्म कर दिया और बुजुर्गों को भी अपने साथ मिला दिया। और मैंने बुजुर्गों से भी रिक्वेस्ट की कि आप भी अपना दस्त शफ़क़त अपने नौजवानों पर रखें। इन्होंने सही रास्ते का इंतखाब किया है, गलत रास्ते का इंतखाब नहीं किया। तो आज नौजवान जो हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है, बुजुर्गों को भी ये बताएं। जो बुजुर्ग एक तवील अरसे से अपने वफादारियां जो हैं वो किसी सियासी जमात से रखते हूँ, किसी लीडर से रखते हूँ, लेकिन जरूर है आज उनको बताने की कि हमारे रहनुमा, हमारे हाथी और हमारे पेशवा जो हैं सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसलिए हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वाबस्तगी को मजबूत करना होगा। 25 जुलाई को करैन पर मोड़ लगा के इंशाअल्लाह ताला निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता आसान और हमवार करना होगा। इन अल्फाज के साथ मुंतज़िमीन आपका, तमाम अहबाब का और उमर आपका कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में फैसल ने, इतराम ने और बहुत सारे अहबाब ने तकारीर की हैं, जितने भी अहबाब ने सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं।